تھے، اس کے علاوہ دوسرا لباس بھی نہیں تھا۔ مولا علی شیر خدا سے دونوں صحابی کہتے ہیں علی تم جاؤ نبی کی بارگاہ میں، جیسی ضرورت پڑے گی ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علی شیر خدا آئے نبی کی بارگاہ میں۔ اس وقت میرے آقا حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم کے کاشانہ رحمت پہ علی شیر خدا نے دستک دی۔ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دروازے پہ کون ہو سکتا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت دروازے پہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا لاؤ دیکھوں تو صحیح کون ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا دروازے پہ مولا علی شیر خدا کھڑے تھے۔ کہتی ہیں اندر آ گئے علی شیر خدا، نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا۔ اب علی شیر خدا میرے آقا کے پائے مبارک کے پاس میں بیٹھ گئے۔ علی شیر خدا سے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ علی شیر خدا نے کوئی جواب نہیں دیا، شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پائے۔ میرے نبی تو دل کے راز جاننے والے ہیں، میرے نبی تو دل کے خطرات سے واقف ہیں۔ ارشاد فرمایا علی تم فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے آئے ہو؟ سر ہلا کے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اب نبی نے ارشاد فرمایا علی تم خوش ہو جاؤ، ابھی تم میرے دروازے پہ آئے بھی نہیں تھے کہ میری بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا جسے میں نے پہلی بار دیکھا۔ اس فرشتے نے آ کر کے مجھے یہ خبر دی یا رسول اللہ آج اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو بیت المعمور میں جمع ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ جب تمام فرشتے جمع ہو گئے اللہ نے ایک فرشتہ جس کا نام احیا ہے اس سے فرمایا خطبہ دینے کے لیے، اور اس نے بڑا فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دیا۔ اس فرشتے نے جب خطبہ دیا نبی کریم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کی موجودگی میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا عقد آسمان پہ باندھ دیا ہے، آپ اس کی رسم کو دنیا میں پورا کر دیجئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح کون مولا علی شیر خدا ہے اور کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اللہ اکبر، جن کے نکاح کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے کہ محبوب اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ اکبر، جب یہ نکاح ہونے جا رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ علی شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تین چیزیں ہیں، ایک میرے پاس زرہ ہے، ایک میرے پاس تلوار ہے، ایک میرے پاس میں سواری ہے، گھوڑا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا تلوار تمہارے کام کی ہے اور تمہارا گھوڑا بھی تمہارے کام کا ہے کہ تم جنگ میں جانے کے لیے تیار رہتی ہو۔ ایسا کرو علی جا کر کے تم زرہ کو بیچ کر کے آ جاؤ۔ اب علی شیر خدا وہ زرہ لے کر کے جاتے ہیں، جیسے ہی کاشانہ رحمت سے باہر نکلے باہر عثمان غنی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ عثمان غنی جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں میرے عثمان نے 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا علی شیر خدا نے یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ فرمایا میرے ہاتھ بیچ دو۔ علی شیر خدا سے عثمان غنی نے وہ زرہ 480 درہم میں خرید لی، درہم و دینار گن کر کے دیے اور زرہ اپنے قبضے میں لے لی۔ اور جب علی شیر خدا چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے کہا علی آج تمہاری قسمت کا کوئی جواب نہیں، علی آج تمہاری شان کا کوئی جواب نہیں، آج تمہارا نکاح دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ علی اس موقع پہ تمہیں کیا گفٹ دوں، کیا تحفہ دوں؟ ایسا کرو علی یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں رکھ لو۔ پتا چلا عثمان غنی وہ ہیں جن کے لیے نبی فرماتے میرے عثمان نے 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے۔ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ سبحان اللہ۔ اب آئے مولا علی شیر خدا اور آ کر کے نبی کو سلام کیا۔ نبی نے فرمایا زرہ بیچ دی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا زرہ تو ہے اور پیسے بھی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ عثمان نے خریدی تھی، پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی دے دی۔ نبی کے دستے مبارک اٹھ گئے دعا کے لیے۔ عثمان غنی کو بہت ساری دعائیں دی نبی نے۔ اب نبی ارشاد فرماتے ہیں بلال جاؤ اور جا کر کے مدینے میں اعلان کر دو تمام انصار و مہاجرین مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اب بہت غور سے سنیے گا، ایک پیغام دینے جا رہا ہوں۔
हूँ। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप फातिमा को जहेज नहीं देंगे? या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दीजिए, हम फातिमा के लिए जहेज इकट्ठा करके लाएं। नबी की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा को जहेज दूंगा। अगर मैं अपनी बेटी फातिमा को जहेज दूंगा तो लोग इसे दलील बनाएंगे कि नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है, हमें भी इतना जहेज चाहिए। नबी ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा, लोग मेरी उम्मत की गरीब बेटियों का क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी ने फरमाया, जो जरूरत का सामान था वो मंगाने के लिए नबी ने फरमाया। जरूरत का सामान क्या था? एक गद्दा था और एक तकिया था, और प्यारे मुसलमानों 2 मिट्टी के घड़े थे, और उसकी हम एक चक्की थी, और कुछ मिट्टी के बर्तन थे गिलास और प्लेट की शक्ल में। ऐ प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये था, ये मुख्तसर सा जहेज नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। इतना मुख्तसर सा जहेज नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया है कि आज के दौर में गरीब से गरीब इंसान उतना जहेज दे सकता है। अब बताना मकसद ये है कि अगर कोई अमीर सीना तान करके ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को फला गाड़ी दी है, या कोई अमीर ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को जहेज में एसी और फ्रिज दिया है, अगर कोई अमीर ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला बादशाह ने अपनी बेटी को दिया, मैंने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना फला वजीर ने अपनी बेटी को दिया, मैंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है, तो ऐ गरीबों, गरीबी का रोना मत रोना, बल्कि सीना तान करके ये कह देना, ऐ अमीर कान खोल करके सुन ले, जितना तूने अपनी बेटी को दिया है, तूने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना फला वजीर ने दिया, तूने अपनी बेटी को उतना दिया जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया, तो सुन ले, मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए वो अमीर का तरीका मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरे लिए अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक हो। अल्लाहु अकबर। नहीं, अब जरा देखें अब ये निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में। कैसा पाकीज़ा निकाह है जिसमें आसमान से फरिश्ते आए। कितना मुबारक निकाह है जिससे आसमान से फरिश्ते उतरे। जरा सोचो तो सही, ये उसी निकाह का सदका है। नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद जमाने में, नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद जमाने में, ये किसका सदका है लोगों? अली ज़हरा की शादी का। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, ये निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। नबी ने फरमाया कि हजरत उम्मे सलमा को कुछ दिरहम देते हुए, जाओ मेरी बेटी के लिए जरूरत का सामान खरीदो, खुशबू और जोड़े वगैरह का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। अब ये निकाह होने जा रहा है। नबी मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। सहाबाए किराम ने अली शेर खुदा को मुबारकबाद देना शुरू कर दी। अली तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, अली तुम्हारे मकाम का जवाब नहीं, अली तुम्हारे मर्तबे का जवाब नहीं। ये मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु है जिनका निकाह मस्जिद नबवी शरीफ में हुआ है। अल्लाह अकबर। आज तो सुन्नत का दौर खत्म होता जा रहा है। आज हम सुन्नतों पे अमल नहीं करते, आज हम नबी के फरमान पे अमल नहीं करते। नबी ने फरमाया है कि जो निकाह मस्जिद में होता है अल्लाह ताला उस निकाह में बरकती अता फरमाता है। आज निकाह सुन्नत तरीके पे कहाँ हो रहा है? आज हमारी शादियां देखो तो हमारी शादियां सुन्नत तरीके पे नहीं। आज हमारे यहाँ के निकाह सुन्नत तरीके पे नहीं। वजह क्या है कि आज हमने अपने नबी के फरमान को भुला दिया। यही वजह है कि चंद दिन नहीं होते हैं कि कोर्ट कचहरी का नंबर आ जाता है, चंद दिन नहीं गुजरते कि तलाक की नौबत आ जाती है, चंद दिन नहीं गुजरते कि वहाँ तलाक की नौबत आ जाती है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचो तो सही, ये निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। ऐसा मुबारक और अजमत वाला निकाह कि नबी अपने घर
घर पे तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरी बेटी को तन्हा छोड़ दिया जाए, मैं अपनी फातिमा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। नबी ने अपनी बेटी फातिमा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या तुम इस बात पे राजी हो? मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है। बेटी मैंने तेरा निकाह अली के साथ कर दिया है, ऐ मेरी बेटी क्या तू इसमें राजी है? हजरत फातिमा ने रो करके कहा था, बाबा हमारा महर क्या रखा गया है? अल्लाह अकबर। महर के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि महर जो है ये औरत का हक है। अल्लाह अकबर। आज महर के ताल्लुक ही से झगड़े होते हैं। आज हमारे यहाँ जब निकाह का नंबर आता है तो महर के ताल्लुक से बातें होना शुरू हो जाती हैं। बाज जगह लड़ाई झगड़े का नंबर आ जाता है। महर कितना होना चाहिए, महर के ताल्लुक से क्या है? अल्लाह अकबर। तो सुनते चलिएगा, महर औरत का हक है और महर की 3 किस्में हैं। एक है मुअज्जल, एक है मुअज्जल हमजा के साथ और एक है गैर मुअज्जल। हजरात मुअज्जल जो हमजा के साथ है ये अजल से बना है, जिसके माना मुद्दत आते हैं, वक्त आता है। मतलब क्या है कि 1 महीने में हो जाएगा तो दे दूंगा, 1 साल में हो जाएगा तो दे दूंगा, 2 साल में हो जाएगा पैसा तो दे दूंगा। इसको मुअज्जल कहते हैं हमजा के साथ में। और एक है मुअज्जल ऐन के साथ, जिसका माना आता है जब तक महर दे नहीं देगा औरत को हाथ नहीं लगा सकता। और एक गैर मुअज्जल है, जिसका मतलब है कि जब हो जाएगा जिंदगी में मेरे पास तो मैं महर अदा कर दूंगा, लेकिन देना हर हाल में है। ये औरत का हक है। अगर आपने औरत का महर नहीं दिया है तो वो कयामत के दिन तुमसे अपना हक मांग सकती है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, महर अदा कर देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके महर को अदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये औरत का हक है, वरना वो कयामत में तुमसे तलब कर सकती है। उस वक्त कहां से पैसा दोगे? उस वक्त नेकियां देनी पड़ेंगी। इसलिए दुनिया ही में महर अदा कर देना चाहिए। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा मैंने निकाह तुम्हारा अली के साथ कर दिया है, बता बेटी तेरी क्या मर्जी है? हजरत फातिमा ने रो करके कहा था, बाबा हमारा महर क्या रखा है? दिरहम और दीनार तो जो महर रखा गया था वो तो रखा गया था चांदी और सोना, लेकिन हजरत फातिमा तो ज़हरा ने देखी हम गुनाहगारों सियाकारों को कैसे फरामोश नहीं किया। हजरत फातिमा से नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा? हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी फातिमा, जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है तब से लेके अब तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया है। आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मैं दूंगा बेटी। हजरत फातिमा ने रो के कहा, बाबा आपसे मैं दौलत का सवाल नहीं करती, मैं आपसे पैसे का सवाल नहीं करती, मैं आपसे सोने चांदी का सवाल नहीं करती, मैं आपसे जर जवाहिरात का सवाल नहीं करती, मैं आपसे मकान वगैरह का सवाल नहीं करती। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा मांग क्या चाहती है? मेरे नबी की लाडली बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? हजरत फातिमा कहती है, बाबा मैंने आपको उम्मत के गम में रातों रात रोते हुए देखा है, मैंने पूरी पूरी रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा मुझे इतना इख्तियार मिल जाए कयामत के दिन कि मैं आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं, मैं आपकी गुनाहगार उम्मत की सिफारिश करा सकूं। नबी ने फरमाया, फातिमा ये तूने क्या मांग लिया? हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा मुझे यही चाहिए। अल्लाह अकबर। नबी करीम की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अपनी बेटी फातिमा से कह दीजिए कि कयामत के दिन फातिमा नाम लेती जाए, जन्नत में दाखिल मैं करता जाऊंगा। ये है हजरत फातिमा। अक्लो शऊर व फहिम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊर व फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। जिनका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरात, तो ये निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में, और जब निकाह हो गया, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते वक्त जो चादर उड़ाई थी, उस चादर के अंदर 17 पेबंद लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। 17 पेबंद, 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था।
वो घराना, वो अजीम घराना कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। अल्लाह अकबर। उस घराने का ये हाल कि कई कई दिन के फाके हो जाते थे, लेकिन कोई साइल अगर दरवाजे पे आ जाता तो वो भूखा नहीं सोता था, अपने घर पे जाकर के उसका पेट अली के घर से भर दिया जाता था। ये घराना है। बैठ जाएं आप तमामी हजरात, जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा आप थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ें ताकि पीछे बैठने वालों को मौका मिल जाए। बड़े थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाएं आप हजरात, करीब में आएं ताकि जो पीछे खड़े हुए हैं उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। अभी भी मिल करके चलने का वक्त है हजरात। अब देखें, आए थोड़ा थोड़ा करीब में आए, करीब में आइए, थोड़ा थोड़ा बढ़िए आप हजरात, आगे को बढ़े। जो भाई पीछे खड़े हैं उन्हें बैठने का मौका मिल जाए, आ जाइए। जो हजरात पीछे खड़े हैं आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। ये दीनी मजलिस है, ये अदब से बैठे, मजलिस की अदब जरूरी है। इसी वजह से तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग आगे आ जाएं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। हजरात कौन फातिमा ज़हरा जब अली के घर में आती हैं, हजरात अली शेर खुदा के घर में नबी जब रुखसत कर रहे थे अपनी बेटी फातिमा को, तो नबी ने अपनी बेटी को जो चादर उड़ाई थी उसमें 17 पेबंद लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। क्या नसीहत करते हैं नबी अपनी बेटी को, क्या पैगाम दे के भेजते हैं नबी अपनी बेटी को। नबी इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, कल कयामत में बेटी जब तेरी और हमारी मुलाकात हो तो हमसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी, तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। पता चला नबी ने शौहर की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया, और शौहर की फर्मा बरदारी कितना बड़ा नेक काम है। नबी ने इरशाद फरमाया है, अगर दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों का सजदा करें। ये शौहरों का मकाम बहुत बुलंद है, शौहरों की शान बड़ी बुलंद है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, मैं अपनी माओ से गुजारिश करूंगा और ये पैगाम दूंगा कि शौहर का मकाम, उसका मर्तबा कितना बड़ा है। जरा सोचो तो सही, उनसे पूछो जिनके सर पे शौहर का साया नहीं होता। उस औरत की ना तो ससुराल में इज्जत होती है, ना उसकी इज्जत मायके में होती है। जिस औरत के सर से शौहर का साया उड़ जाता है उसकी कोई कदर मंजिलत नहीं होती है। आज शौहर पैसे कमा करके लाए, उसकी कमाई को अहमियत नहीं देती मेरी बहन। शौहर मेहनत करके पैसे कमा करके लाए, उसकी मेहनत की कमाई को अहमियत नहीं देती मेरी बहन। जरा सोच तो सही, जो गर्मी में जाकर के पसीना बहा के जो पैसे कमा के ला रहा है वो किसके लिए ला रहा है? अपने बीवी बच्चों के लिए ही तो ला रहा है। जो जाकर के गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में अपना पसीना बहाता है, पूरा पूरा दिन धूप में खड़े होकर के काम करता है, और जो मजदूरी मिलती है शाम को लेकर के आता है। चाहिए था तो ये कि दोनों मियाँ बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करते, मुसल्ला बिछा करके अपने रब की इबादत करते। मौला तूने जो हमें दिया है वो तेरा शुक्र है हजरात। लेकिन हुआ क्या, हम नाशुक्री करने लगे। हुआ क्या, हम अपने रब के फरमान को भुला बैठे। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैं अपनी बहनों को ये पैगाम दूंगा कि शौहर की रजा में राजी रहो, क्योंकि शौहर का साया जिस दिन सर से उड़ जाता है उस दिन कोई मोहब्बत की नजर से नहीं देखता, उस दिन कोई प्यार की नजर से नहीं देखता। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा अब तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो, कल जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा अली कैसे राजी होंगे?
नबी ने फरमाया जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना, जब जब अली घर में दाखिल होने सलाम पहले तुम करना, अली तुमसे राजी रहेंगे। आज सलाम का रिवाज खत्म हो गया। आज सलाम जो है वो नबी की जो हदीस पाक है, नबी ने फरमाया है इफ्शाहुस सलाम तीबुल कलाम इतामुत ताम व इफ्शाहुस सलाम। नबी फरमाते हैं कि सबसे अच्छा अमल जब नबी से पूछा गया आका सबसे बेहतर अमल क्या है, नबी ने फरमाया सबसे बेहतर अमल ये है कि मोहब्बत से बात की जाए, प्यार से बात की जाए। लेकिन आज हमारा उसूल क्या है, हम मोहब्बत से बात नहीं करते, आज हम प्यार से बात नहीं करते। कोई किसी को गाली दे के बात करता है, कोई किसी से तल्ख अंदाज में बात करता है। बात उनसे मोहब्बत से करते हैं जो पैसे वाले हैं, बात उनसे मोहब्बत से की जाती है जो रुपये वाले हैं, बात उनसे मोहब्बत से की जाती है जो दौलत वाले हैं। अगर गरीब सामने आ जाए उसे कोई सलाम करना तक पसंद नहीं करता, अगर कोई गरीब और नादार और मुफलिस आ जाए तो इंसान उससे मोहब्बत से बात करना तक पसंद नहीं करता। आज हमारा मुआशरा बदलता चला गया। हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया, आज से हमने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हम मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए, आज हम परेशानियों में गिरफ्तार हो गए। आज किसी महकमे में हमारी सुनवाई नहीं, आज कोई मुसलमानों के पुरसाने हाल नहीं, आज कोई मुसलमानों से उनकी खैरियत पूछने वाला नहीं। जिधर देखो मुसलमानों के दुश्मन नजर आते हैं, जिधर देखो मुसलमानों पे जुल्म सितम करने वाले नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, जब तक हम मिल करके चलते रहे, जब तक कि हम अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म पे खड़े रहे, किसी की मजाल तो क्या जो हमारी तरफ नजर उठा करके देख लेता, किसी की मजाल तो क्या जो हमारी तरफ पूरी नजर से देख लेता। जब से हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ा, जब से हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ा, तभी से हम मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए। याद रखो हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी की मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तो नबी अपनी बेटी फातिमा को नसीहत करके भेजते हैं, मेरी बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, कल बेटी जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो इस हाल में मुझसे मिलना मेरी बेटी, तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। और नबी ने फरमाया अली के राजी होने के लिए ये है बेटी, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। आज हम सलाम जान पहचान वालों को करते हैं, अगर कोई मालदार है तो दूर से सलाम करते हैं, हाथ उठा के साहब सलाम अस्सलाम वालेकुम, दूर से हाथ उठा के सलाम करते हैं। हम गरीबों को सलाम नहीं करते। मेरे आका की क्या शान थी, मेरे आका जब गली से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते, छोटे छोटे बच्चों को नबी सलाम करते। एक दिन बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि आज अपने पहले सलाम करेंगे नबी को, और एक आड़ में बैठ गए तमाम बच्चे। और जब आका उस रास्ते से गुजर रहे थे, बच्चों ने सोचा हम पहले सलाम करेंगे नबी को, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सबसे पहले उन्हें सलाम कर दिया। पता क्या चला, पता ये चला कि अगर हम बच्चों को सलाम करेंगे तो कल बच्चे हमको सलाम करेंगे, है कि नहीं। लेकिन आज हम सलाम नहीं करते, गली से गुजर जाएंगे लेकिन सलाम नहीं करेंगे। ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी की सुन्नतों पे अमल करो, दुनिया में बावकार हो जाओगे। नबी की सुन्नतों पे अमल करो, दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा करके रुखसत किया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अली शेर खुदा और हजरत फातिमा एक मकान में, एक सहाबी ने अपना मकान किराए पे दे दिया, उस मकान में रहने लगे। और जब उस मकान में पहुंचे तो नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, अली जब तक मैं ना आ जाऊं किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। मेरे आका तशरीफ ले गए, मेरे आका ने पानी पे दम किया कुरान की आयत पढ़ करके, और उसके चंद छींटे हजरत फातिमा के गिरेबान पे डाले और पानी पी करके मेरे नबी ने दिया, फरमाया इसे पी लो। और ऐसा ही अली शेर खुदा के लिए किया। फिर नबी ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए और रब की बारगाह में दुआ की, मेरे परवरदिगार इन दोनों को
पाक सुथरा फरमा दे और इनसे जो औलाद हो उसे भी पाक सुथरा फरमा दे। ये नबी दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखें मौला अली शेर खुदा की शान, अब देखें फातिमा ज़हरा का मकाम, देखें हजरत अली की जिंदगी और हजरत फातिमा की जिंदगी कैसे गुजर रही है और आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। कई कई दिन के फाके हो जाते थे हजरत फातिमा के घर में, लेकिन कभी नबी की बारगाह में जाकर के ये शिकायत नहीं की कि बाबा आपने मेरा निकाह किसके साथ कर दिया। उनके घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, उनके घर में तो जो है मुझे पेट भर करके खाने को भी नहीं मिलता। कभी ये शिकवा नहीं किया हजरत फातिमा ने। हमेशा हजरत फातिमा सब्र से काम लेती रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। और शान ये थी हजरत फातिमा की, सखावत की तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्स देती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये पैगाम देती है कि एक दिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक यहूदी आ गया और उसने आकर के नबी से सवाल कर दिया कि मुझको कुछ दीजिए। नबी ने सहाबा से फरमाया दीजिए इसे कुछ। कबीले बनी सुलैम का वो यहूदी था। हजरत किसी हजरत अली शेर खुदा ने अपना अमामा शरीफ दे दिया, एक सहाबी ने अपनी सवारी दे दी और नबी ने फरमाया इसको कुछ खाने के लिए दीजिए। वहां मदीने शरीफ में कई कई दिन के फाके होते थे, बड़ा गुर्बत का दौर कटा है प्यारे मुसलमानों। नबी ने फरमाया इसे कुछ खाने के लिए दीजिए। सहाबा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नबी ने हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया ले जाओ इसे मेरी बेटी फातिमा के घर पे। अल्लाह अकबर। जब हजरत फातिमा के मकान पे उस यहूदी को लाया गया और हजरत सलमान फारसी ने कहा या बिन्ता रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल की बेटी, ए जिगर गोश, ए रसूल, ए फातिमा ज़हरा, नबी ने इसे भेजा है, कुछ खाने के लिए कहा है, अगर हो तुम्हारे घर में तो इसे दे दो। हजरत फातिमा ने घर में नजर डाली, कोई चीज बज़ाहिर खाने की नहीं थी। एक चादर थी हजरत फातिमा की, वो चादर देकर के सलमान फारसी से कहा इसे शमऊन यहूदी के पास लेकर के जाओ और इससे जो भी पैसा मिले उसका गल्ला खरीद करके इस साइल को दे दो। अल्लाह अकबर। ये घराना कैसा घराना था, ये हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, क्योंकि इस दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटा, जो भी साइल आया है उसकी झोली को भर दिया गया है। हजरत फातिमा ज़हरा की चादर लेकर के जब सलमान फारसी पहुंचे, शमून यहूदी ने उस चादर को देख करके कहा कि जब इनके मजहब का नहीं है, ये यहूदी है, उसका पेट भर रहे हैं, तो सोचो ये नबी सच्चे हैं, इनका घराना सच्चा है। हजरत फातिमा की चादर को शमून यहूदी हाथ में लेकर के कहता है आज मैं इस चादर के वसीले से कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। उस साइल को खाने का सामान दे दिया और सलमान फारसी को चादर वापस करते हुए कहा ये चादर फातिमा ज़हरा को दे देना और उनसे कहना कि मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। ये हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनके साइल पे कोई मोहताज आता है उसकी झोली को भर दिया जाता है, अगर भूखा आता है तो उसे खाना दे दिया जाता है, अगर कोई प्यासा आता है तो उसे पानी दे दिया जाता है। ये हजरत फातिमा का दरवाजा है, ये हजरत फातिमा की चौखट है। एक दिन एक औरत अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के हजरत फातिमा के सामने आ गई। उसके बच्चे का लिबास जो था, कपड़ा जो था वो फटा हुआ था, जो गोद में था। हजरत फातिमा का दिल भर आया उस बच्चे के कपड़े देख करके कि फटे हुए कपड़े ये बच्चा पहने हैं। इतने में उस औरत ने सवाल कर दिया आपके बच्चों का कोई कपड़ा हो तो हमें दे दो ताकि हम अपने बच्चे को पहना दे। इमाम हसन नई कमीज पहने हुए थे, छोटे से थे इमाम हसन। हजरत फातिमा ने इमाम हसन को उठाया जो सो रहे थे, बेदार किया इमाम हसन को, उनकी कमीज उतारी और उतार करके उस औरत को दे दी और कहा कि अपने बच्चे को पहना दे, और खुद इमाम हसन को पुरानी कमीज पहना दी। अल्लाह अकबर। ये घराना कैसा घराना है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और इस दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटा। तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। लाड में खदीजा कहती थी, लाड में खदीजा कहती थी मेरी लाडली है फातिमा। अल्लाह अकबर। ये फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनके दरवाजे पे कोई भी साइल आया खाली हाथ लौट करके नहीं गया। साइल की झोली को भर दिया जाता है, साइल की मुराद को पूरा कर दिया जाता है। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम मर्तबा देखो। एक दिन अली शेर खुदा घर में दाखिल हुए, थोड़ा ताखीर से आए। हजरत फातिमा ने पूछा अली आज लेट कैसे हो गए? अली शेर
खुदा ने कहा फातिमा मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा का बात सुन के आ रहा हूँ। नबी इरशाद फरमा रहे थे। हजरत फातिमा ने कहा क्या फरमाया मेरे बाबा ने? हजरत अली ने कहा फातिमा आज नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का जिक्र कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जहेज में इतना सामान दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जहेज में ये सामान दिया। ऐसी जूतियां दी थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे जिस पे याकूत और जवाहिर जड़े हुए थे, और अपने दामाद को भी वैसे ही जूते दिए थे। हजरत अली शेर खुदा ने जब इतना बयान किया और कहा अच्छा फातिमा मैं आराम के लिए जा रहा हूँ। हजरत फातिमा ने सोचा शायद हो सकता है अली ने ये बात सुनी हो तो अली के दिल में ये ख्याल आया हो कि अली शेर खुदा के घर में जो है वो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की लाडली है, शहजादी है। अल्लाह अकबर। ये हजरत अली शेर खुदा के दिल में ख्याल नहीं आया था, हजरत फातिमा सोच रही थी। लेकिन होता क्या है जब अली शेर खुदा सोते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जन्नती महल है और उसके अंदर हुराने जन्नत हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा मिंबर पे बैठी हुई हैं और आपके चारों तरफ पंखे से हवा झली जा रही है, और एक बड़ी खूबसूरत खातून तश्त में हीरे और जवाहिरात याकूत और जवाहिरात लेकर के खड़ी हैं, और वो ये सोच रही है कि फातिमा मेरी तरफ एक नजर देख ले, एक नजर फातिमा मेरी तरफ कर दे। हजरत अली शेर खुदा ने कहा फातिमा ये कौन हसीन और जमील खातून है? ऐ फातिमा जो ये जवाहिर लेकर के खड़ी है, जो तश्त में याकूत लेकर के खड़ी है। हजरत फातिमा ने फरमाया ये वही है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है जिनका जिक्र मेरे बाबा ने किया है। अल्लाह अकबर। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा है जो फरमाती है कि देखो ये भी मेरी कनीज बन करके आई है। पता चला ये हजरत फातिमा वो है नबी ने जिनके बारे में फरमाया है मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्लो शऊर और फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। लेकिन पर्दे का आलम देखें हजरत फातिमा की, इबादत का आलम कि हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत का आलम ये है कि पूरी पूरी रात हजरत फातिमा इबादत करती थी। जब आप शाम को मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने के लिए खड़े होती, सर्दी की लंबी लंबी रातें होती थी, दुनिया जो है वो आराम से सोती थी। ऐसे आलम में हजरत फातिमा मुसल्ला बिछा करके अपने रब के हुजूर सजदा करती, और एक सजदा हो पाता कि हजरत बिलाल फजर की अजान देने लगते। हजरत बिलाल के अजान की जब आवाज कानों में आती, हजरत फातिमा सजदे से सर को उठाती और रब की बारगाह में कहती मेरे परवरदिगार तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं, मौला एक रात ऐसी बना दे कि फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके।